Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit, and I welcome you in my YouTube channel. And today we are going to start with wholesaling, retailing and physical distribution of the product, which is a part of your third unit, that is channel of distribution. Okay, so let us start with the definition of channel of distribution. What is channel of distribution? You will able to understand after watching this video. But before starting this video, I would like to request you to subscribe my channel if you are new on the channel, and if you are old student, then you can like the video and share it with your friends. So channel of distribution, a sequence of marketing organizations that directs a product from producer to ultimate user. वो सारे सीक्वेंस या वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र तक पहुंचाने में, वो सारा सीक्वेंस, वो सारा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ मिडिलमैन. व्हाट इज मिडिलमैन, और वी ऑल्सो कॉल इट एज मार्केटिंग इंटरमीडियरी. A marketing organization that links a producer and user within a marketing channel. So all those people who are working in between the manufacturer and end user and facilitate them to reaching the good towards end user, those are called intermediary or middleman. All right. Direct channel. We will discuss about direct channel, in which there is nobody between producer and consumer. Producer sends its goods directly to consumer for using it. This is named as direct channel or zero label channel, because no intermediary is involved in between producer and consumer. So this type of channel is also called as zero label channel in marketing, used by all services and by some consumer goods also. This type of channel is used by services in most of the cases. Okay, जैसे कि एजुकेशन की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें या लॉयर की बात करें, then they are the people which provide their services directly to consumer. There is no intermediary in between that. Okay, so this type of channel is called direct channel. Producers can control quality and price, do not have to pay for intermediaries, and can be close to their customers. कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन की जा सकती है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड. ओके, दिस completely depend on the bargaining between producer and consumer. Okay, because they interact with each other directly, so they have more bargaining power in this type of channel. For example, Dell computers, Mary Key. So Dell computers, you would be knowing that Dell computers directly supply to the organizations their product. ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लैपटॉप्स की नीड है, तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डेल को ऑर्डर प्लेस करता है, एंड डेल डायरेक्टली प्रोवाइड देम द डेल लैपटॉप फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ. ओके, नाउ कमिंग टू रिटेल चैनल. रिटेल चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन लेबल चैनल. प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड रिटेलर क्या होता है, रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है. तो सर्विसेज के केस में ज़्यादातर ये यूज़ नहीं किए जाते, बट गुड्स के केस में मोस्टली एफएमसीजी प्रोडक्ट और कुछ रिटेल चेन्स की बात करें तो इस टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किए जाते हैं. प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स सेल डायरेक्टली टू द रिटेलर व्हेन retailers like Walmart can buy in a large quantity. जब कोई रिटेल चेन है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेल मतलब बल्क में ऑर्डर परचेज करती है और उसे छोटे छोटे मतलब बल्क ब्रेक करके छोटे छोटे पार्सल्स में कंज्यूमर को डिलीवर करती है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज
Retail channel distribution, this is also known as one label channel of distribution, used for bulky products where additional handling would be increase selling cost. Furniture, car, these are a type of retail channels product. And for perishable or highly fashioned product that must reach customer quickly, तो ऐसे प्रोडक्ट के केस में जिन्हें कस्टमर तक बहुत जल्दी पहुंचना होता है, हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट, तो उसके केस में इसी चैनल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएरी चैनल में इंक्रीज होंगी वैसे वैसे टाइम डिले होगा और प्रोडक्ट जल्दी ही क्या होगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा. ओके, so now coming to third channel of distribution, that is wholesaler channel. In this, two intermediaries are involved in between producer and consumer, so this is also known as two label channel of distribution. Producer to wholesaler, wholesaler sell the goods to retailer and retailers provide goods to ultimate consumer. This is the traditional type of distribution channel. जैसा कि स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग जब से कॉन्सेप्ट व्यू में आया है तब से यही चैनल मोस्ट ऑफ द इन केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द FMCG प्रोडक्ट दिस टाइप ऑफ चैनल इज बीइंग यूज्ड. इट इज यूज्ड व्हेन प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट आर कैरीड बाय सो मैनी रिटेलर्स दैट द प्रोड्यूसर कैन नॉट डील विद देम ऑल. जब कई सारे रिटेलर्स को एक साथ प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी होती है, सो इट इज क्वाइट हेक्टिक फॉर द मैन्युफैक्चरर फॉर डीलिंग विद ऑल ऑफ द रिटेलर, सो दे प्रोवाइड देयर गुड्स टू होलसेलर एंड होलसेलर सेल्स द गुड्स टू रिटेलर इन स्मॉल पैकेट्स एज कंपेयर्ड टू होलसेलर. ओके, नाउ मर्चेंट होलसेलर. व्हाट इज मर्चेंट होलसेलर? मिडिलमैन दैट परचेज goods in large quantity and then sell them to other wholesaler or retailer. ठीक है, वो लोग जो वो फर्म या वो पर्सन जो किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करती है और होलसेलर या रिटेलर को फर्दर आगे सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट होलसेलर. ऑपरेट इन वेयर हाउसेज वेयर दे रिसीव एंड टेक टाइटल टू एंड स्टोर गुड्स. ये लोग, इन लोगों को वेयर हाउस मेंटेन करना पड़ता है जहां पे अपने मटेरियल को ये स्टोर करते हैं एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेफ्टी टू प्रोडक्ट. एजेंट एंड ब्रोकर. यस, नाउडेज इट हैज बीन कमिंग इन व्यू दैट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स आर playing a very important role in channel of distribution. Producer to agent to wholesaler to retailer and finally goods reaches to consumer. Agent is a middleman, not take title to product. वो उसकी ओनरशिप नहीं लेता है, ना उसको ओनरशिप ट्रांसफर होती है किसी गुड्स की, बस वो फैसिलिटेट करता है किसी प्रोडक्ट को एक इंटरमीडिएरी से दूसरी इंटरमीडिएरी तक पहुंचाने के लिए. वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का फैसिलिटेशन करता है एंड आर कंपनसेटेड बाय द कमीशन पेड टू द प्रोड्यूसर. ओके, तो प्रोड्यूसर की तरफ से उसे इस काम के लिए कमीशन के फॉर्म में उसका रेम्यूनरेशन किया जाता है. Next is often used for services, real estate and by producers that do not have their own sales forces. जिनके अपना सेल्स फोर्स या फिर एम्प्लॉयज नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, एजेंट्स को हायर करते हैं एंड दे डू देयर वर्क एट अ कमीशन. ओके, तो ज़्यादातर ऐसा किस प्रोडक्ट में किया जाता है? जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, या तो सीजनल है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है प्रोडक्शन उनका, जैसे कि रियल इस्टेट की बात की जाए या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज की बात की जाए जो टाइम कंज्यूमिंग है. तो कॉन्टिन्यूअस किसी एम्प्लॉय को हायर करना इट कैन बी वेरी कॉस्टली, सो दे हायर एजेंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. ऑलराइट, चैनल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट. अब हम लोग चैनल का जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे लेंगे वो हम लोग डिसाइड करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी शुड कीप इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट. अ मैन्युफैक्चरर may use multiple channels according to their product category
to reach different market segment, that is same product is sold to consumer market also and to business houses also, then we should take in view that which should be the convenient channel of distribution for serving that market. Second, to increase sale or capture more market share, ये भी पर्पज होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की. Yes, this is here is a chart for channel for consumer product. If we are dealing in a consumer product, then which are the channels which can be used? Direct channel, you can see in the diagram here, no intermediary is involved between producer and consumer. Secondly, retailer is involved between producer and consumer. This is one level channel. And in two level channel, wholesaler is also included. And last is agent broker channel of distribution, in which agent is performing the role of intermediary between wholesaler and producer. After that, goods and services are delivered to retailer and retailer provide to final consumer. How do you choose which channel to use? अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे दैट विच इज द सुइटेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर मार्केट सेगमेंट? सो हियर इज अ डायग्राम विच इज डिस्क्राइबिंग यू दैट ऑन विच बेसिस यू कैन decide about the channel of distribution. Market factors that affect channel choices. Here are 4 factors which have a huge impact on the decision about channel of distribution. First is customer profile. Second is consumer or industrial customer, which type of business. Third is size of market. Fourth is geographic location. So these are the factors which have impact on the selection of channel of distribution. How do you choose which channel to use? Product factor. पिछले वाले जो फैक्टर्स थे आप लोग देखेंगे वो मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स थे. अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज. सेकेंडली, प्रोडक्ट प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. इट ऑल्सो डिपेंड्स on the price of product, that how many intermediaries you are going to involve in between channel of distribution. Third is product life cycle, what is the perishability or lifetime of your product. So it also depends on the life of product, that which channel of distribution you are going to apply for your product. Last is product delicacy. Now coming to vertical marketing system. Vertical channel integration, the combining of 2 or more stages of distribution channel under a single firm management. एक ही फर्म जब मिक्स टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करती है, किसी प्रोडक्ट के लिए अलग डिफरेंट टाइप का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करती है और किसी डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करती है, देन इट इज़ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम ऑफ distribution channel. Okay, functions of intermediary channel fulfill 3 important functions. ये आप इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की और फंक्शंस में भी इसे लिख सकते हैं. फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. सेकेंड इज ओवरकमिंग डिस्क्रिपेंसीज, टेम्पोरल, स्पैटियल, सॉर्टमेंट एंड क्वांटिटी. थर्ड इज प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट इफिशियंसी. कॉन्टैक्ट इफिशियंसी आप लोग देख सकते हैं, प्रोड्यूसर से अगर बायर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट वाला फिगर फॉलो होगा. प्रोड्यूसर अपने सारे बायर्स से एक साथ परचेज कर रहे हैं मटेरियल. नेटवर्किंग सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क करता है फिगर में, ठीक है. और अगर बीच में कोई मिडिल मैन या इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व है तो सारे प्रोड्यूसर और सारे बायर अल्टीमेटली उस मिडिल मैन से कनेक्टेड होंगे. ओके, और अगर डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे बायर और सारे प्रोड्यूसर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होंगे. नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, रिटेलर्स. रिटेलर की बात करें देन द फाइनल लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो फाइनल लिंक है वो रिटेलर्स परफॉर्म करते हैं. नाउ क्लासेस ऑफ इन स्टोर रिटेलर बाय ओनरशिप. रिटेलर्स भी
डिफरेंट टाइप्स के होंगे. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट रिटेलर, अ फर्म दैट ऑपरेट्स ओनली वन रिटेल आउटलेट, वन ओनर ऑफ वन स्टोर. एक स्टोर ऑपरेट करता है जो रिटेल चेन, और उसका एक ही ओनर होता है. दिस टाइप ऑफ रिटेल शोरूम्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिटेलर. ओके. First is second is chain retailer, a company that operates more than one retail outlets, one owner for many store. जब एक स्टोर का एक ओनर होता है और एक ही स्टोर से ऑपरेट करता है, then it is independent retailer, and one owner has many retail outlets, then this is called chain retailer. Okay. Now third category we are coming to franchise, a company that leases some of its retail outlets many owners of many stores. ठीक है. स्टोर्स आउटलेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो अपने स्टोर्स की फ्रेंचाइज किसी अलग अलग ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी. ओके. तो उस केस में क्या होता है, फ्रेंचाइज रिटेल्स बोले जाते हैं. क्लासेस ऑफ इन स्टोर रिटेल बाय मर्चेंडाइज. यू कैन गो थ्रू द फिगर. यस. हाउ मेनी इंटरमीडियरीज डू आई यूज. इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे कि हमें कितनी इंटरमीडियरीज अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए रखनी है अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. फर्स्ट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, द यूज ऑफ ऑल अवेलेबल आउटलेट्स फॉर अ प्रोडक्ट टू सैचुरेट द मार्केट. ठीक है. अपने प्रोडक्ट को हर जगह पे, हर रिटेल आउटलेट पे अवेलेबल कराना. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्जेक्टिव of this type of channel of distribution is mass marketing and selling of convenience goods. जो भी convenience goods हैं उनकी availability broad level पे ensure करना, that is the goal of intensive distribution. Second is selective distribution, the use of only a portion of the available outlets for a product in each geographic area. हर geographic area में कुछ selected लोकेशंस पे अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, कुछ सिलेक्टेड आउटलेट्स पे अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले करवाना, या फिर उसे उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना. ओके. सो दिस इज टाइप ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज टू रिड्यूस एक्सेस टू रेज ब्रांड इमेज. लास्ट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, द यूज ऑफ ओनली अ सिंगल रिटेल आउटलेट फॉर अ प्रोडक्ट इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में, एक बड़ी लोकेशन में सिंगल आउटलेट के थ्रू अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना एंड अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. आप लोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के आउटलेट्स की बात करें तो आपको एक बड़ी जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर सिंगल आउटलेट मिलेगा किसी एक कंपनी का. ठीक है. आप लोग अपने आसपास की लोकेशन में सर्च करें, देन देयर विल बी अ सिंगल आउटलेट इन अ लार्ज एरिया. So this is called exclusive distribution. Here is last slide of this video, non-store retailing. जब रिटेलिंग जो है वो बिना किसी स्टोर के परफॉर्म की जाती है, देयर इज नो स्टोर्स बट इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व इन बिटवीन. ओके. फर्स्ट इज कैटलॉग मार्केटिंग, व्हेन सेलेक्शंस एंड प्लेस ऑर्डर्स बाय मेल और टेलीफोन. जब मेल या टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कैटलॉग मार्केटिंग. जैसे कि आप होम शॉप 18 वगैरह से शॉपिंग करते होंगे तो फ़ोन पे अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं. ठीक है. सो दिस इज कैटलॉग मार्केटिंग. सेकेंड इज ऑनलाइन रिटेलिंग. ऑनलाइन रिटेलिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू कंप्यूटर कनेक्शन. कंप्यूटर पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना और वहाँ से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है. ओके. फोर्थ इज ऑटोमेटिक वेंडिंग, द यूज ऑफ मशीन्स टू डिस्पेंस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं होती है, मशीन खुद आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देती है. आपने कुछ मशीन्स देखी होंगी, वेंडिंग मशीन्स. जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आप उसमें अपना ऑर्डर पुट करें और वो डायरेक्टली मशीन ही आपको आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देती है. किसी तरह के स्नैक्स अगर आपको लेने हैं या कोल्ड ड्रिंक लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक, इन दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स automatic vending machines are used. Fourth is direct selling, selling through face to face presentation.
एक सेल्स पर्सन आपके पास आता है एंड ही ट्राइज टू कन्विंस यू फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. ऑलराइट, सो 1-to-1 selling is called direct selling. I hope you are able to understand the factors affecting selection of channel of distribution. In next video we will discuss some more points based on the channel of distribution. Till then, take care. Thank you.